Hello learners, welcome to this online learning platform of Kulhan University. I am Dr. Minu from LBSM College, Karandi, Jamshedpur. In this video lecture, I will going to discuss about the permanent tissues, their structure, function and their classification, and what are the different types of permanent tissues. So let's discuss about the permanent tissues. In our previous videos, we discussed about the simple permanent tissues. They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. In this video, we are going to discuss about the complex permanent tissues. They are xylem and phloem. So let's discuss about the tissues. Complex permanent tissues are a group of more than one type of cells having common origin and working together as a unit. It is called complex permanent tissue. The important complex permanent tissue in vascular plants are xylem and phloem. Both of the tissues are together called vascular tissues. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम हैं और दोनों ही मिलकर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं. Xylem, the term xylem was introduced by Nageli in 1858. It is the chief conducting tissue of vascular plants responsible for the conduction of water and inorganic solids. Xylem जो वर्ड है वो xylose से आया है जिसका मतलब होता है वुड. Xylose जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है. ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था नेजेली के द्वारा 1858 में और ये एक चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है वैस्कुलर प्लांट्स का which is responsible for the conduction of water and inorganic solids. रूट जो वाटर को और inorganic solids को एब्जॉर्ब करता है उसका कंडक्शन टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जाइलम के थ्रू होता है. द टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 kinds of cells. They are called components of xylem and found in the most of the vascular plants. जो टिश्यू जो जाइलम जिन टिश्यू से मिलकर बनता है वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. They are called components of xylem. Xylem के component हैं वो. Found almost all the vascular plants. Sometimes one or more may be lacking some of them. कभी कभी ये सभी components सभी plants में present होते हैं लेकिन किसी किसी plants में वो absent भी होते हैं. For example, the vasculars are absent in pteridophytes except in Selaginella, Equisetum and Pteridium. वेसल्स जो होते हैं जाइलम वेसल्स वो टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं जनरली लेकिन सिलेजिनेला इक्विजिटम और टेरिडियम को छोड़कर. एंड इन जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट इन नीटेल्स में सिर्फ वो प्रेजेंट होता है. ट्रैकिड्स आर एब्सेंट इन सम हाइड्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स और अगर बात करें तो ट्रैकिड्स जो है कुछ हाइड्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं. और 4 जो कॉम्पोनेंट हैं they are tracheids, vessels or tracheae, xylem fibers and xylem parenchyma. अब components of xylem में सबसे पहले बात करते हैं tracheids की. Tracheids are elongated tube-like dead cells with tapering ends. Tracheids जो होते हैं वो elongated dead cells हैं जिनका end जो है वो taper होता है. The walls are hard and lignified and but not much thick and enclosed a white empty lumen. जो wall होता है वो lignified होता है, थिक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है और वो एनक्लोज्ड होता है एक वाइड एम्प्टी ल्यूमन से. ल्यूमन मीन्स पाइप जो बीच का जो एक खोखला स्ट्रक्चर होता है, खोखला ट्यूब होता है जिसको कहते हैं ल्यूमन. द ट्रैकिड्स ऑफ प्राइमरी जाइलम डेवलप फ्रॉम द प्रोकैम्बियम. जो ट्रैकिड्स है प्राइमरी जाइलम का वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है जबकि दोज ऑफ द जाइलम डेवलप फ्रॉम द वेस्कुलर सेकेंडरी जाइलम डेवलप फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम. लेकिन सेकेंडरी जाइलम का जो ट्रैकिड्स होते हैं वो वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होते हैं. ट्रैकिड्स ऑफ द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. ट्रैकिड्स जो हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है क्योंकि उनमें वेसल्स एब्सेंट होता है. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स अलॉन्ग विथ वेसल्स. और एंजियोस्पर्म में ये वेसल्स के संग में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी जाइलम में भी प्रेजेंट होते हैं. Tracheids possesses various types of cell thickening such as annular means ring-like, spiral, helical, scleriform, ladder-like, reticulate network, and pitted means pored tracheids are present.
pore tracheids are also of two types. Functions of tracheids. The main function of tracheids is to conduct water and dissolved mineral elements from the root to leaves. जो मेन फंक्शन होता है ट्रैकिड्स का वो वाटर कंडक्शन होता है और वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करता है, रूट टू लीव्स तक. ट्रैकिड्स ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड एंड फर्म सेकेंडरी वॉल्स. ट्रैकिड्स जो है वो टिश्यूज़ को सपोर्ट भी देते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो हार्ड लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल से मिलकर बने हुए होते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज वेसल्स और ट्रैकियाई. The xylem vessels designates a long tube consisting of a series of drum-shaped cells placed one above other with their end walls perforated or dissolved. Xylem vessels जो होते हैं वो ड्रम शेप्ड यानी लंबे और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं. The vessels are syncytes, formation of fusion of cells. They are syncytes. Syns mean fuse, cytes means cells. तो ये सभी फ्यूजन ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं. सभी जो वेसल्स होते हैं फ्यूज होते हैं आपस में. द सेल्स आर सर्कुलर, पॉलीगोनल और ओवल इन शेप. उनका जो सेल होता है वो सर्कुलर हो सकता है, पॉलीगोनल और ओवल भी हो सकता है शेप में. दे आर डेड टिश्यू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जितने भी डेड टिश्यूज़ हैं जाइलम के वो सभी उनमें सभी टिश्यूज़ में जो वॉल है वो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. वेसल्स ऑफ प्राइमरी जाइलम डेवलप फ्रॉम द प्रोकैम्बियम वेयर सेकेंडरी जाइलम डेवलप फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम. जो वेसल्स होते हैं प्राइमरी जाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं और सेकेंडरी जाइलम के जो वेसल्स होते हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होते हैं. तो प्राइमरी जाइलम जो है लेंथ में इंक्रीज इन लेंथ कराएंगे और जो सेकेंडरी जाइलम है वो इंक्रीज इन गर्थ कराएंगे, मतलब थिकनेस में इंक्रीज कराएंगे. वेसल्स पोजेस वेरियस टाइप ऑफ वॉल थिकनिंग्स. इनमें वेसल्स में बहुत अलग अलग तरीके के वॉल में थिकनिंग्स हम लोग मतलब थिकनिंग ऑफ वॉल देख सकते हैं. दैट इज स्केलरी फॉर्म, रेटिकुलेट एंड पीटेड. स्केलरी फॉर्म इन स्केल के फॉर्म का या लैडर लाइक. रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क, पीटेड मीन्स पोर विथ पोर्स, मतलब एक ऐसा वॉल रहेगा जिसमें पोर होगा. स्केलरी फॉर्म मतलब वॉल का फॉर्मेशन लैडर लाइक होगा. रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क रहेगा. द वॉल एरिया बियरिंग परफोरेशन इज कॉल्ड परफोरेशन प्लेट्स. जो वॉल होता है वेसल्स का अगर उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, परफोरेशन मीन्स पोर्स होते हैं, तो उनको परफोरेशन प्लेट्स कहते हैं. द परफोरेशन प्लेट्स में भी सिंपल परफोरेशन और मल्टीपल परफोरेशन. अगर प्लेट्स में सिर्फ एक छेद हो तो उसे सिंपल परफोरेशन बोलेंगे. अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल पोर्स हो तो उन्हें मल्टीपल परफोरेशंस बोलेंगे. द मल्टीपल परफोरेशंस व्हेन अरेंज इन अ रो स्केलरी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और इन द ग्रुप ऑफ सर्कुलर होल्स. अब वो जो पोर्स होते हैं परफोरेटेड पोर्स होते हैं वो स्केलरी फॉर्म भी हो सकते हैं, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस पे अलग अलग डिस्क फॉर्म में अरेंजमेंट भी हो सकता है उनका, या तो रेटिकुलेट हो सकते हैं, नेटवर्क फॉर्म किए हुए हो सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ कुछ ग्रुप एग्रीगेशन भी हो सकते हैं जिन्हें हम लोग फॉर्मिनेट परफोरेशन कहते हैं. द वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एक्सेप्ट इन सिलेजिनेला, इक्विजिटम एंड टेरिडियम एंड जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट इन नीटेल्स. वेसल्स यूजुअली टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में नीटेल्स में हम लोग देख सकते हैं जिसका एक मेंबर नीटम है जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट से बहुत ही सिमिलैरिटी दिखाता है. और टेरिडोफाइट्स में ये सिलेजिनेला, इक्विजिटम और टेरिडियम में स्पॉट कर सकते हैं हम लोग, इन्हें देख सकते हैं, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंस ऑफ वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म बट इन फ्यू फैमिलीज द वेसल्स आर एब्सेंट. अब जो वेसल्स का प्रेजेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, लेकिन कुछ कुछ एंजियोस्पर्म में वेसल्स को एब्सेंट भी देखा गया है. द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज जनरली कॉल्ड नॉन पोरस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जाइलम वेसल्स एंड इन एंजियोस्पर्म वुड इज कॉल्ड पोरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. चूँकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए उन्हें उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें नॉन पोरस कहा जाता है, और चूँकि एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें पोरस कहा जाता है. अब वेसल्स के प्रेजेंस की वजह से जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एब्सेंस की वजह से जिम्नोस्पर्म में जो वुड होता है उनमें पोर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें नॉन पोरस कहते हैं.
और एंजियोस्पर्म्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वेसल्स जो है हॉलो स्पेस जो है वो पोर दिखाई देता है उनके लकड़ी में। दे में भी डिफ्यूज और रिंग पोरस। अब पोरस भी जो वुड है वो दो तरीके के हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं या रिंग पोरस हो सकते हैं। अब फंक्शंस, वेसल्स के फंक्शंस की बात करें तो वेसल्स आर द चीफ कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के ये चीफ कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। दे आर ट्रांसलोकेट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये वाटर का ट्रांसलोकेशन कराते हैं और डिजोल्व मिनरल्स को रूट से लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाते हैं। द वेसल्स ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। वेसल्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वॉल थिकनिंग्स ऑफ वेसल्स को देख सकते हैं। दे आर एन्युलर, स्पाइरल और स्केलरी फॉर्म, लेडर लाइक, रेटिकुलेट, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स को भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग वेसल्स के पोरस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डायग्राम में। नेक्स्ट कंपोनेंट जाइलम फाइबर और वुड फाइबर्स। द जाइलम फाइबर डेवलप फ्रॉम द सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एज द अदर जाइलम सेल्स। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो अदर जाइलम सेल्स के जैसे सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से प्रोड्यूस होते हैं। दे हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स एंड नैरो सेल ल्यूमेन। उनके पास में भी लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और नैरो ल्यूमेन होता है। दे आर प्रेजेंट बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी जाइलम, और वो दोनों ही जगह प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम दोनों में ही वो प्रेजेंट होते हैं। द टू मेन काइंड्स ऑफ जाइलम फाइबर्स आर, दो तरीके के जाइलम फाइबर्स हैं, फाइबर ट्रैकिड्स एंड लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। फर्स्ट, फाइबर ट्रैकिड्स। द फाइबर ट्रैकिड्स आर इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फाइबर्स विच कैनॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू फाइबर्स और ट्रू ट्रैकिड्स। जो फाइबर ट्रैकिड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट टाइप के फाइबर्स हैं, न ही वो सही मायने में फाइबर्स ही होते हैं और न ही सही मायने में ट्रैकिड्स ही होते हैं। These usually develop from the tracheids by increasing the thickness of walls and decreasing the lumen diameter with number of pits. ये कैसे डेवलप होंगे? ये ट्रैकिड से डेवलप होंगे जब ट्रैकिड्स के जो सेल्स होते हैं वो अपने थिकनेस को इंक्रीज कर लेगा ड्यू टू सेकेंडरी वॉल थिकनेस। सेकेंडरी वॉल में थिकनेस की वजह से बिकॉज ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सेकेंडरी वॉल में थिकनेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थिक होने के बाद में ये डायामीटर में इंक्रीज हो जाएगा, तो ये फाइबर्स का फॉर्मेशन कराएगा विथ अ नंबर ऑफ पिट, जिसमें बहुत सारे पोर होंगे। दूसरा, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, दे आर ट्रू फाइबर्स। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स आर ट्रू फाइबर्स विथ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स प्रॉपर्टी। इनमें जो सेल्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे, मीन्स ये बहुत ही थिक वॉल्ड होंगे और ये फाइबरस प्रॉपर्टी शो करेगा और एक्सट्रीमली मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोड्यूस करेंगे। फंक्शंस ऑफ, अगर जाइलम फाइबर्स की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को होते हैं ताकि प्लांट जो है वो सही सीधे खड़े रह सकें और तने को मजबूती दे सकें। अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो दोनों तरीके के फाइबर ट्रैकिड्स और लिब्रिफॉर्म जो फाइबर्स होते हैं उनका डायग्राम इसमें दिखाया गया है और उनके सेल्स के स्ट्रक्चर को भी दिखाया गया है। Next component is xylem parenchyma. These are living parenchymatous cells present in both primary as well as secondary xylem. Xylem parenchyma चारों components में एक यही xylem parenchymatous cells ही होते हैं जो कि living होते हैं, बाकी जो तीनों तरह के जो cells होते हैं xylem के tissues होते हैं वो dead होते हैं। The parenchyma present in secondary xylem are of two types. जो parenchymatous cells जो secondary xylem में present होते हैं, primary में नहीं, secondary xylem में, they are of two types. दैट इज़ वुड पैरेनकाइमा एंड रे पैरेनकाइमा। सेकेंडरी जाइलम जो है हमेशा ही गिर्थ में इंक्रीज कराएगा और वुड का थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द वुड पैरेनकाइमा आर फाउंड फ्रॉम फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल्स। जो वुड पैरेनकाइमा होते हैं, फ्यूजिफॉर्म जो कैम्बियम होगा फ्यूजिफॉर्म शेप का, वो उस इनिशियल सेल से ये प्रोड्यूस होंगे। दे आर लिविंग सेल्स विथ प्रोटोप्लाज्म, और ये लिविंग सेल्स होंगे जिनमें प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म के प्रेजेंस की वजह से इन्हें लिविंग कंसीडर किया जाता है। द वुड पैरेनकाइमा ओरिएंटेड वर्टिकली, और ये वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं। रे पैरेनकाइमा फॉर्म फ्रॉम द रे इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम। They also have thin-walled and protoplasmic cells. Ray parenchyma oriented vertically as well as radially. They have lignified wall and simple pits.
जो रे पैरेन्काइमा होते हैं ये वर्टिकल रेडियल अरेंजमेंट होता है इनका, ये प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स हैं, मतलब लिविंग होंगे। और रे पैरेन्काइमा जहाँ से ओरिजिनेट होगा, दे आर रेडियली भी ओरिजिनेट हो सकते हैं एंड वर्टिकली भी। दे आर लिग्निफाइड वॉल, उनके पास में भी लिग्निन से डिपॉजिटेड वॉल होगा और उसमें पोर्स होंगे, वो भी पोरस होगा जिसमें सिंपल पिट्स प्रेजेंट होगा। अब अगर फंक्शन की बात करें जाइलम फाइबर्स की, तो दे हेल्प इन कंडक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। वो फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। यही दो तो स्टोरेज प्लांट का जो स्टोरेज प्रॉपर्टी वाला कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च एंड फैट ही होता है। अब जाइलम के कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम इन द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। जो फ्लोएम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फूड कंडक्टिंग मतलब जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा उसे सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम जो है अपने में कंडक्ट करेगा और पूरे प्लांट पार्ट्स में इंक्लूडिंग रूट्स तक पहुंचाएगा। द फ्लोएम हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट सेल। फ्लोएम के भी अपने अलग अलग तरीके के कंपोनेंट सेल्स होते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स आर, अगर उसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 तरीके के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि सीव प्लेट्स का पोजीशन कहाँ है। सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स को दिखाया गया है, जिसका रोल अलग अलग होता है इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जिसे हम फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं इन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। फर्स्ट कंपोनेंट फ्लोएम का जो होता है वो है सीव एलिमेंट्स। द सीव एलिमेंट्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। इट इंक्लूड्स सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अ सीव सेल इज a special kind of cells which possesses sieve areas in its lateral walls। जो सीव सेल होता है वो सीव जो एलिमेंट होते हैं उसके लैटरल वॉल, किनारे की वॉल की तरफ में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। द सीव सेल्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। सीव सेल्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। द सीव ट्यूब इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, जबकि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब पाए जाते हैं। सीव सेल्स जो है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे और सीव ट्यूब जो है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। The sieve elements are living cells without nucleus. Cell wall made up of cellulose. Cytoplasm lack cellular organelles except vacuoles. अगर सीव एलिमेंट्स की बात करें तो जितने भी सीव एलिमेंट्स हैं दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग होते हैं लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल वॉल जो है जैसे प्लांट सेल के जैसे सेलुलोज से बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म जो है उनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट वैक्यूल्स, कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ वैक्यूल को छोड़ के। उनमें प्रोमिनेंट बड़ा एक वैक्यूल होता है। स्पेसिफिक पी प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड पी प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है इनमें। और इस पी प्रोटीन का काम बहुत सारा होता है, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिड्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस वॉल पोजेसिंग सीव एरियाज इज कॉल्ड सीव प्लेट्स। अगर सीव एरिया की बात करें, जिस जगह पर सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो क्रॉस वॉल है वहाँ पर सी प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सीव प्लेट। द मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म सीव प्लेट इज सिंगल एंड प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स और ऑब्लिक एंड वॉल। एंड वॉल जहाँ पर भी सेल्स खत्म होता है वहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग और वो ऑब्लिक या ऑब्लिक एंड वॉल पे प्रेजेंट हो सकता है। एंजियोस्पर्म के केस में उसमें सिर्फ एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग सिंपल सीव प्लेट कहते हैं, यानी सिंपल पोरस सीव प्लेट कहते हैं। अगर वो पोर एक से ज़्यादा एरियाज में प्रेजेंट होगा तो उसे कंपाउंड सीव प्लेट्स कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सीव एलिमेंट्स, अब अगर फंक्शन की बात करें तो सीव एलिमेंट्स आर सिंसाइट्स एंड द मेन फंक्शन ऑफ इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। इसमें पी प्रोटीन होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में। और ये सभी सिंसाइट्स होते हैं यानी फ्यूजन ऑफ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स। These are living cells always associated with sieve tubes. Cell wall is made up of cellulose, active protoplast with all the cell organelles. जो कंपेनियन सेल होता है ये लिविंग होता है और हमेशा एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब्स के संग में, मतलब एंजियोस्पर्म में ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगा।
सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड एक्टिव प्रोटोप्लास्ट विद ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होगा और सारे एक्टिव प्रोटोप्लाज्म होंगे, मतलब उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स स्लाइम बॉडीज। The common wall between the companion cell and sieve tube shows the presence of fine pits which are transverse by plasmodesmata. ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये रिच होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा में, इनमें बहुत सारे पैसेज होते हैं और एक्वापोरिन्स होते हैं जो कि जिसमें ट्रांसवर्स वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंस होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है जो कि डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। द कंपेनियन सेल्स are absent in pteridophytes and gymnosperm whereas present in the angiosperm. कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ सीव एलिमेंट, दे असिस्ट इन द सीव ट्यूब्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जो फ्लोइंग में जब सॉल्यूट्स का लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस होता है, लोडिंग होता रहता है, उस समय ये कंपेनियन सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स का इंक्रीज कराते हैं फ्लोएम के जो फ्लोएम जो ट्यूब होता है इसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो दीज आर लिविंग पैरेन्काइमेटल सेल्स इलोंगेटेड विथ राउंडेड एंड्स एंड पोजेसेस सेलुलोज सेल वॉल्स। ये भी और सभी सेल्स के जैसा पैरेन्काइमेटल सेल्स होंगे क्योंकि ये पैरेन्काइमा है और पैरेन्काइमा और थीन वॉल्ड इनका वॉल जो होगा सेकेंडरी वॉल नहीं होगा, लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा और सेलुलोज जो है वो से बने हुए सेल वॉल होंगे। दी सेल स्टोर फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म स्टार्च एंड फैट, ये फूड को रिजर्व करेंगे इन द फॉर्म स्टार्च एंड फैट्स के फॉर्म में। समटाइम्स दे कंटेन रेजिन्स एंड टेनिन्स, कभी कभी वो रेजिन्स और टेनिन्स को भी स्टोर करते हैं। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स बट एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है टेरिडोफाइट्स में और डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोनोकॉट एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होंगे। अब अगर फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स एंड मोस्टली अकर इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये बास्ट फाइबर कहलाते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में अधिकांशतः मिलते हैं। द फाइबर्स ऑफ द प्राइमरी फ्लोएम हैव बोथ सेलुलोज एंड लिग्निफाइड थिकनिंग। अब फाइबर्स हैं तो ये सिंपल सी बात है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी वॉल में सेकेंडरी थिकनिंग मिलेगी और लिग्निफाइड थिकनिंग मिलेगी। द फाइबर्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम आर इलोंगेटेड लिग्निफाइड सेल विद सिंपल पिट्स। अब इनके अगर फ्लोएम के अगर हम लोग बात करें इसके वॉल की तो इलोंगेटेड सेल्स होंगे और पूरा जो सेल वॉल होगा वो लिग्निफाइड होगा और वो पोरस होगा, सिंपल पिट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। दे आर नॉन लिविंग सेल्स and that provide mechanical support to give strength and rigidity to the organ। ये फ्लोएम में ये जो है नॉन लिविंग सेल होगा जो फाइबरस सेल्स है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि ये जो मिनरल्स एंड वाटर कंपोनेंट्स और स्टोरेज फूड है उसको डिफ्यूज नहीं होने देते हैं और उनमें सारा जो बीच का जो ल्यूमेन है वो क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं और डेड होने की वजह से इनका स्ट्रेंथ बहुत हाईली स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेंथ इनमें बहुत ज़्यादा होता है और रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं विथ जाइलम टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसके साथ ही हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का ये पोर्शन ख़त्म होता है और हमारा परमानेंट टिश्यूज़ का डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।